معذرت کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے کنیکشن اس کا ڈراپ ہو گیا تھا کسی وجہ سے، بڑی معذرت سے ابھی آگے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بتایا تھا کہ الرحمن نہایت مہربان اس مبالغہ کا صیغہ ہے، قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے۔ الرحیم بڑا مہربان کرنے والا ہے، یہ بھی اس مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے 95 بار آیا ہے۔ رحمہ یہ میں نے بتایا تھا فعل ماضی کا صیغہ، یہ ورب ہے، اور ورب جو ہے پاسٹ میں یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے 4 بار یہ قرآن میں یہ لفظ ہوتا ہے رحمہ، رحمن، یہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہے، را اور خا کے اوپر ساکن ہے۔ رحمن یہ مصدر ہوتا ہے، یعنی یہ وہ بیسک روٹس ہوتا ہے جس سے آگے لفظ نکلتے ہیں سارے کے ساتھ۔ رحم یہ مصدر ہے، اس کا مطلب رحم کرنا، قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس رحمن سے جو سبجیکٹو آتا ہے، سبجیکٹو کا جو پلورل آتا ہے جمع رحما، یہ اس کا مطلب رحم کرنے والا، رحم کرنے والے، یہ جمع ہے۔ راحم کی جمع ہے، راحم رحم کرنے والا، یا رحیم رحم کرنے والا، جیسے اپنے اوپر بڑا رحم کرنے والا رحیم، اس کی جمع رحماء آتی ہے۔ اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ رحمتن یہ بھی رحمن کی طرح مصدر ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کی روٹس کئی طریقے سے آتی ہے، بعض اوقات اس اصل میں تا آتی ہے، بعض اوقات اس میں اور لفظ اضافے کیے جاتے ہیں۔ اس کا معنی بیسک رحم کرنا ہوتا ہے، اس میں مصدر ہے، یہ قرآن مجید میں 79 بار آیا ہے۔ اس کے بعد ہے رحمتوں کا، میں نے کل بتایا تھا یہ رحمت مصدر ہے، اس کے آگے اضافت کی گئی ہے کاف ضمیر کی طرف، اور کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب کے لیے آتی ہے۔ تیری رحمت مثلا کسی نسبت کی طرف، کسی انسان کی طرف کرنی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ فلاں تیری چیز، مثلا کتابوں کا، کتاب کتاب ہوتی ہے، کتابوں کا تیری کتاب، تیری کا لفظ کاف زبر کا سے آئے گا، یہ قرآن میں کئی جگہ پر آئے گا، یہ اس میں مضاف ہے، کاف ضمیر مخاطب کی طرف ہے، یہ قرآن میں 3 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس طرح ہے رحمتنا ہماری رحمت، اس میں ضمیر نون ضمیر متکلم کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد ہوتی ہے۔ یہ رحمت کا لفظ رحمت ہے، آگے نا ضمیر کی طرف آیا ہے، جیسے کتاب واحد ہے، کتاب و نا ہماری کتاب، اسی طرح یہ ضمیر نون کی طرف متکلم کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 5 مرتبہ آیا ہے۔ یہ کچھ رحم کی روٹ سے یہ کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دوسری سلائڈ میں دوسرے آ رہے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس لفظ رحم سے نکلے ہیں، تو قرآن مجید میں اتنی بار آئے ہیں، یہ ان کی بنیادی حالت ہے، اور یہ ان کا ترجمہ پھر اس طرح بنتا ہے۔ اس طرح قرآن رحمتہ رحمتہ یہ لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے ایک بار رحمتہ۔ اب ذرا یہ آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے، یہ رحمتہ، یہ رحم میم ساکن ہے اور حا کے نیچے زیر ہے، رحم، رحمہ، رحمتا، یہ اصل میں لفظ ہے تو رحم کرے، اصل میں نے تو نے رحم کیا، اس کا اصل معنی یہ آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جس سیاق و سباق میں وہاں پر جو مستعمل ہو رہا ہے، وہاں اس ماضی کا معنی فعل امر والا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے قرآن مجید میں بعض اوقات فعل ماضی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ دعائیہ ہوتا ہے، وہاں پر دعا دینا مقصود ہوتی ہے، اس لیے پھر ہم اس کا معنی فعل امر والا کرتے ہیں۔ اگر اس کا لغت کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو رحمتہ کا معنی بنے گا تو نے اس پر رحم کیا ہے، فعل ماضی معلوم، یعنی گزشتہ زمانے میں یہ فعل ماضی معلوم ہے، اور یہ واحد مذکر مخاطب ہے، یہ تا زبر تا، یہ تا زبر تا جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہوتی ہے۔ اگر تا سے تے ہوتا تو یہ واحد مؤنث مخاطبہ ہوتی، پھر مانا تو ایک عورت نے رحم کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی فیمیل ہو تو پھر رحمتا، رحمتے، اور اگر آگے کوئی میل ہو تو پھر رحمتا ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں صرف 1 بار آیا ہے۔ یہ دوسرا ہے رحمتہ،
जैसे आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व रहमतुहू, ये उस तरह का है। रहमतुहू ये कुरान मजीद में आया लफ्ज़, ये इसम वैद मुज़क्कर मुज़ाफ हा ज़मीर की तरफ। रहमत वो मस्तर जो आपने पिछले स्लेट में ये जो आपने लफ्ज़ रहमत पढ़ी है, इस रहमत को हू ज़मीर की तरफ यहाँ पर मुज़ाफ किया गया है। तो उसकी रहमत, रहमत का माना रहम करना, हू आ गया तो उसकी रहमत। किताब 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 हू उसकी किताब, ये कुरान मजीद में 25 बार लफ्ज़ आया है रहमत हू का। इस तरह रहमती असल में ये लफ्ज़ रहमत है, या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है। रहमत का माना रहमत और या ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम के लिए आती है। ये आप बात एक ज़हन में रखें, गायब और मुखातब के सीगों में मुज़क्कर मुन्नस के लिए अलग अलग सीगे अरबी ज़बान के। आज आप कुछ 14 सीगे पढ़ेंगे, जब ग्रामर में फेल माजी पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मुतकल्लिम के लिए मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, फीमेल हो या मेल हो, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये या ज़मीर मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। रहमती मेरी रहमत, इसम वाहिद मुज़क्कर, या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है। कुरान मजीद में दो। अच्छा, ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है रहीमुना। ये ज़रा तवज्जो आप फरमाएं, ये लफ्ज़ रहीमुना लफ्ज़ है, मीम के ऊपर पेश है, हमारी रहमत। वो लफ्ज़ रहीम, रहमुना, रहम लफ्ज़ मो मस्तर आया और नून ज़मीर जमा मुतकल्लिम की तरफ है। यह कुरान मजीद में एक बार आया है। ये कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है रहीमना। रहीमना ये फेल माजी का सीगा है। आज की जो आप ग्रामर पढ़ेंगे, आपका जो होमवर्क दिया जाएगा फेल माजी मालूम की गिरदान ये आपको दी जा रही है। ये आखिर में ये सीगा ज़रब ना आएगा, इसका माना होता है जमा मुतकल्लिम फेल माजी का होता है, यानी हमने ये काम गुज़िश्ता ज़माने में किया, हमने रहम किया। फेल माजी मालूम है और जमा मुतकल्लिम है, कुरान मजीद में एक मरतबा है। ये रहमा लफ्ज़ है और हू ज़मीर इसके आगे बतौर ऑब्जेक्टिव मफूल के लगेगी। ये आपने देखा ना रहमा, जो आपने इस रहमा के बारे में तहकीक पढ़ी थी, ये लफ्ज़ बिल्कुल उसी रहमा की तरह है, लेकिन आगे हू ज़मीर सिर्फ इसकी मफूल लगी है। उसने उस पर रहम किया। आपने देखा पहले आपने तर्जुमा पढ़ा था उसने रहम किया, अब यहाँ पर उस पर के लफ्ज़ के इजाफा है, ये हू ज़मीर का तर्जमा है। ये कुरान मजीद में लफ्ज़ एक बार आया है। इस तरह तरहमना, असल में इसी का सिर्फ तरहमना है। ये फेल मुजारे मालूम है, जिसका माना होता है तू हम पर रहम करेगा। ये गा आगे मैंने लिखी, तू हम पर रहम करेगा, इसका ये माना होता है तू हम पर रहम करेगा। ये फेल मुजारे होता है। आप जब अंग्रेजी या किसी और ज़ुबान की पढ़ते हैं, वहाँ पर आप 3 ज़माने पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं, और तीनों के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अरबिक ज़बान के अंदर फेल माजी के लिए आज वो आपको गिरदान दी जाएगी, उस तर्ज के सारे अल्फाज होते हैं। उस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए तो समय मालूम हो जाता है कि ये फेल माजी का सीखा है। और जो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है उसको हम फेल मुजारे कहते हैं। और फेल मुजारे के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें प्रेजेंट का माना भी होता है और फ्यूचर का माना भी होता है। ये फिर अब जब कलाम हो रही होती है, उस कलाम के सियाक़ो सबाक़ से खुद मुतय्यन हो जाता है कि यहाँ पर फ्यूचर का माना लिया जाएगा या यहाँ पर प्रेजेंट का माना लिया जाएगा, प्रेजेंट टेंस का। समटाइम ऐसे होता है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों का माना भी मुराद लिया जाता होता है। ये तरहम लफ्ज़ है, तू रहम कर, ना का माना हम पर। ये फेल मुजारे मालूम है, वैद मुज़क्कर मुखातब है। ये अरबी ज़बान के अंदर आम तौर पर ता जो आती है ये मुखातब के लिए आती है, शुरू में आ जाए तब, आखिर पे आ जाए तब। जैसे रहीमता और तरहम, ये तरहमुनी, ये आगे ना ज़मीर जमा मुतकल्लिम की थी, अब ये या ज़मीर है, ये दरमियान में नून इजाफी होता है, इसको नून विकाया का कहते हैं। इसका मतलब होता है तू हम पर रहम फरमा, तू मुझ पर रहम फरमा। ये भी कुरान मजीद के अंदर एक मरतबा है। तुरहमून, ये भी फेल मुजारे मजहूल का सीगा है, जमा का सीगा है। जमा की कल अलामत मैंने वाव नून आपके सामने रखी थी, वाव नून जमा की अलामत होती है। इसका मतलब तुम रहम किए जाओगे।
इंशाल्लाह हम जब फिर मालूम और मजहूल की बहस पढ़ेंगे आप देखेंगे कि अरबी ज़बान में मालूम और मजहूल बनाना सबसे आसान है। अब मसलन इसको आप देखें, ये ता के ऊपर अगर ज़बर पढ़े तरहमून, फिर माना है तुम रहम करोगे। अगर तुरहमून ता पर पेश आ जाए इसका माना होता है तुरहमून तुम रहम किए जाओगे। कुरान मजीद में आपको इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलेंगी मालूम और मजहूल की। इंशाल्लाह ये हम अपने वक्त पे इसकी तफसीली बहस पढ़ेंगे। अभी आपको माना मालूम होना चाहिए, ये 8 बार कुरान मजीद में आया है। इस तरह अरहमो, ये भी लफ्ज़ आप समझें, अरहमो मीम पर पेश हो, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, इसमें तफजील होता है, ये कंपेयर किया जाता है किसी दूसरे के साथ, और इसमें ये सुपीरियर होता है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, ये इसका माना होता है। तो ये अरहमो, लेकिन आपको ज़हन में रहे मीम के ऊपर पेश होती है, अरहमो, ये इस तरह आता है इसमें तफजील का। ये कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है अरहमर राहिमीन के उन्वान से। अरहमा, उसने रहम किया, ये भी ये रहमा की तरह होता है, या फ़र्क इंशाल्लाह हम करीब पढ़ेंगे। रहमा की तरह ये लफ्ज़ है, अरहमा जो माना उसका है, ये माना भी इसके जब मीम के ऊपर ज़बर हो, फ़ेल माजी मालूम वाहिद मुज़क्कर गायब सुलासी मजीद होता है एक, ये सुलासी मुजरद सुलासी मजीद की बहस में इंशाल्लाह हम करीब आप पढ़ेंगे। इस तरह लफ्ज़ होता है इरहमना, हम पर रहम फरमाइए, असल में इरहम इसको हम कहते हैं फ़ेल अमर। फ़ेल अमर की 6 सीखें हैं, वो आप पढ़ेंगे, जिसमें किसी चीज़ का हुक्म या तलब की जाती है, हम पर रहम फरमा, ये फ़ेल अमर मालूम है सुलासी मुजरद का, कुरान मजीद के अंदर 3 बार ये आया है। यरहमु, ये फ़ेल मुज़ारे मालूम है वैद मुज़क्कर गैब का, वो रहम करेगा। इस तरह यरहमुकुम, अब लफ्ज़ पर यरहमु है, आगे कुम आया, ये मुखातब जमा की ज़मीर है मुज़क्कर की, इसका माना होता है वो तुम पर रहम करेगा। फ़ेल मुज़ारे मालूम वैद मुज़क्कर गैब, लेकिन साथ के आगे ज़मीर भी लगी हुई है, ये कुरान मजीद में 2 बार आया है। इस तरह यरहमुना, यरहम वही सीखा है, वो रहम करेगा, ना ज़मीर आगे इसका ऑब्जेक्ट मफूल है, हम पर रहम करेगा, कुरान पाक में 1 दफ़ा आया है। यरहमुहुम, यरहमु लफ्ज़ है, आगे हम ज़मीर इसका मफूल है, वो उन पर रहम करेगा, कुरान मजीद में 1 बार आया है। ये मैंने तमाम वो अल्फाज इकट्ठे किए हैं जो अर्रहमान के मादा रूट से बनते हैं, राहा मीम से, उनसे ये जो अल्फाज बनते हैं, उनसे ये सारे के सारे अल्फाज जो है वो इकट्ठे किए गए हैं और आपके सामने ये पेश कर दिए गए हैं। ये कुरान मजीद में इतने ज़्यादा अल्फाज आते हैं, इतनी बार ये सारी पूरी हिस्ट्री आपके पास आई है। कल की तरह ये भी इंशाल्लाह भी आपको PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। आज की ये आज का हमारा सबक था। अब हम इसका तर्जमा देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम तर्जमा देखने के बाद फिर आगे कुछ ग्रामर कैसा है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, दोनों मुबालगे की है, जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। ये हमारा आज का तर्जमा हो गया और इसके साथ ही हमारा जो सबक है वो भी। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कर सकता है। इसके बाद अगले 2 स्लाइड हमारी ग्रामर की है, उसके बाद हम ग्रामर से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? सर जी जो फेल वगैरह है ये हमें कैसे पता लगेगा, मतलब उसकी डेफिनेशन वगैरह है कोई? फेल की तारीफ आ रही है और फेल के लिए अरबी ज़बान में बहुत से, वैसे तो बहुत सारे सीखे हैं, लेकिन टोटल जो मेजॉरिटी है वो 36 उसकी सैंपल हैं, सीखे हैं। वो आप याद कर लेते हैं तो दुनिया जहान के सारे फेल आपके सामने आ जाएंगे। वो हम फेल के बाद में शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। वो चीज़ आपको, आप फिर जहाँ पर भी फेल देखेंगे मतलब जो भी आपको पता चल जाएगा कि फेल मैं कह माजी रहा हूँ मुजारे कौन सा है। जी मैं कह रहा हूँ सर जी जो से फेल है, फेल और उसकी एग्जाम है जो सी
वो जो इसमें यूज हो रही हैं पहले में उनका पता नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अब साथ साथ हम ग्रामर के अतबार से पढ़ जाएंगे, ये हम सिर्फ वोकेबलरी इकट्ठी कर रहे हैं। जब हम कुरान शुरू किया हमने, तो वोकेबलरी हम इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अंदर हमको सारे पता चल जाए लफ्ज़ कहाँ कहाँ आते हैं। फिर जैसे आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको दोबारा ये मश्क़ी जब दोबारा ये करेंगे तो दोबारा आपको अच्छी तरीके से इनकी सही तफ़हीम हो जाएगी। ये दरअसल हम वोकेबलरी इकट्ठी कर रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर एक लफ्ज़ हम अगर रहमान पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि रहमान लफ्ज़ से जुड़ी हुई अल्फाज जो इसके रूट से बनते हैं वो कौन कौन सी शक्ल में कुरान मजीद में कहाँ कुरान मजीद में कौन कौन सी शक्ल में मौजूद है, उनकी सारी शक्लें हमारे पास महफूज हो जाए और उसके बाद हमारे लिए आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। और जी किसी का क्वेश्चन है, आगे चले। और सर जी ये आज हमारी दूसरी क्लास है ना? जी आज दूसरी क्लास है। किसी का और क्वेश्चन कोई है इसके अलावा? नो, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अब ये है कि हमें फेल कैसे पता चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम तारीफ की तरफ जाते हैं। फेल माजी पास्ट टेंस ये हम सबसे पहले पढ़ा करते हैं इसमें जो है अरबी ज़बान के अंदर इसकी दो किस्में होती हैं, आपके सामने लिखी हुई फेल माजी मालूम और फेल माजी मजहूल। ये दो किस्में हैं, मालूम और मजहूल आपके सामने। अब तारीफ क्या होती है? तारीफ दुनिया में सबके एक जैसी होती है, अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं। किसी गुजरे हुए ज़माने में किसी फेल का वाक़या होना, करना या पाया जाना फेल माजी कहलाता है। कोई काम फेल माजी में हुआ है, जब कोई ऐसा अमर पेश आया है जैसे माता फलां आदमी फौत हो गया है या कोई ऐसा काम पाया गया है, उसको फेल माजी कहलाते हैं। फेल माजी की दो किस्में होती हैं, माजी मालूम, माजी मजहूल। माजी मालूम आपको पता है जिसमें सब्जेक्ट हमको मालूम होता है, फाइल मालूम होता है। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, यानी ज़र्ब वाला फेल जो है ये ज़ैद से वाक़या हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट हमें मालूम है। फेल माजी मजहूल में जिसमें फ़ाइल मालूम न हो, फ़ाइल लिखा हो, जिसमें फ़ाइल जो होता है वो मालूम नहीं होता। जिसमें फेल का फ़ाइल ये मालूम नहीं होता, इसको हम जो कहते हैं जनाब फेल माजी कहते हैं। फेल सर फाइल मतलब? मैं बता, सब्जेक्ट उसका ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया। अब ज़ैद को किसने मारा, ये ज़र्ब वाला फेल वकू किससे हुआ? जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ज़राबा ज़ैदुन का तर्जुमा हमने पढ़ा था ज़ैद ने मारा, तो हमको पता है कि ये यहाँ पर फ़ाइल ज़ैद है, काम करने वाला ये है। अब इसकी जब हम थोड़ी सी मजहूल में चेंजिंग की है, ज़ुरिबा ज़ैदुन होगा तो ये फेल मजहूल है। ज़ैद ने मारा, ज़ैद को मारा गया, लेकिन ज़ैद को मारा किसने ये मालूम नहीं। यहाँ हमें इसका सब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं है, इसको कहते हैं फेल माजी मजहूल। मज़ीद इंशाअल्लाह कुरान मजीद के तर्जमे में इसकी मज़ीद वजाहत होती जाएगी। अब फेल माजी मालूम हमें कैसे मालूम होगा कि फेल माजी मालूम के कौन से सीखे हैं? तो अरबी ज़बान में ये 14 सीखे आते हैं। पहला ज़रबा, दूसरा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ये कोई बेसिक लफ्ज़ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के लिए अल्फाज ये इनका चुनाव किया गया है। यहाँ पर कोई भी आप लफ्ज़ चुन सकते हैं, ये संजीक सांचा है। इस सांचे के अंदर कोई भी लफ्ज़ आएगा हमें मालूम हो जाएगा कि उसकी फेल माजी में पोजीशन क्या है। मसलन लफ्ज़ समया है, समय, समया, समयू, समयत, समयता, समयना, समयता, समयतुमा, समयतुम, समयते, समयतुमा, समयतुन्ना, समयतु, समयना। जी हमें उनकी पोजीशन मालूम हो जाती है कि इस लफ्ज़ की इसमें आया है, इसकी इस वक्त पोजीशन क्या है, ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है। एक तो इस एतबार से हमें इसकी पोजीशन मालूम होती है। दूसरी हमें इस एतबार से पोजीशन मालूम होती है ये गायब है, मुखातब है, मुतकल्लिम है। और एक इस एतबार से हमें पोजीशन मालूम होती है ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है। गोया इस सांचे में जब हम किसी लफ्ज़ को ढाल कर देखते हैं तो हमें लफ्ज़ की 3 तरह की रिसर्च होती है। पहली रिसर्च में ये होती है, हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो आ रहा है हमारे पास सामने है ये वाहिद, तस्नीया, जमा में से क्या है। दूसरा उसकी पोजीशन मालूम होती है कि मुज़क्कर मुअन्नस में से ये क्या है।
اور تیسری پوزیشن اس کی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ مذکر مؤنث کے بعد یہ لفظ جو ہے یعنی غائب ہے، مخاطب ہے، متکلم ہے، ان تین اعتبار سے پوزیشن ہمیں اس کی معلوم ہوتی ہیں۔ میں مشق آپ کو فی الحال نہیں دیتا، فی الحال صرف آپ کو یہ کام دیتا ہوں، میں آگے سے یہ سمیع وغیرہ کو ہٹا رہا ہوں تاکہ یہاں پر یہ لفظ نہ رہیں، اور آپ کو نا یہاں اس کا میں ترجمہ ہر ایک کا تفصیل سے آج کوشش کرتا ہوں بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ لفظ سمجھ آ جائے اور آپ آسانی سے ان الفاظ کی تفہیم حاصل کر لیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا لفظ ہوتا ہے ضربہ۔ جو لفظ بھی اس سانچے کے اندر فٹ آئے گا وہ ہوگا، اس کا معنی ہے اس ایک آدمی نے مارا، اس ضرب کا معنی ہے مانا ایک آدمی نے گزشتہ زمانے میں مارا۔ اب اس کی لفظ کی پوزیشن، یہ اس کا ترجمہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اس لفظ کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلی پوزیشن اس کی یہ ہے کہ یہ واحد ہے، جو میں نے بتایا تھا آپ کو مذکر مؤنث میں معلوم ہوگا۔ جو دنیا کا لفظ بھی ضربہ کے وزن پہ آئے گا، سمع، حمدہ، رحمہ، اس کے ساتھ ان تین لفظ اس کے ہوں گے اور تینوں متحرک ہوں گے، تو وہ لفظ فعل ماضی معلوم کا ہوگا۔ اس میں کچھ اور آگے مزید وضاحتیں بھی آئیں گی، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ کریں گے، جب ہم بیسک کچھ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کا جب ذہن کھلے گا تو پھر آپ کو اور زیادہ چیزیں اس میں سمجھاؤں گا۔ پہلی چیز، اس سانچے پہ جو لفظ آ جائے گا ہمارے پاس، اس سانچے پر دلیل ہوگی کہ یہ واحد ہے۔ دوسرا ہمارے پاس اس کی یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، اس کی تجنیس پہ بھی پتہ چل گئی۔ تیسرا ہمیں پتہ چل گیا یہ غائب ہے، یعنی اس ایک آدمی نے، کون آدمی ہے کوئی پتہ نہیں، اس ایک آدمی نے گزشتہ زمانے میں مارا ہے، یہ اس کا ایک مفہوم ہوگا۔ اب کوئی لفظ اگر ذرا با کے سانچے پہ آ کر ڈل رہا ہے، وہ ذرا با کے سانچے میں ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ان دو مردوں نے مارا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ان دو مردوں نے مارا گزشتہ زمانے میں، یہاں پر بھی گزشتہ زمانہ اس کے ساتھ لگے گا، گزشتہ زمانے میں۔ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا، جب دو آیا تو واحد نہیں رہا، یہ تثنیہ ہو گیا ہے، یہ واحد نہیں رہا، یہ تثنیہ ہو گیا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ اور دوسری اس کی پوزیشن ہم کو یہ بھی معلوم ہو گئی، یہ مذکر ہی ہے، اور تیسری پوزیشن اس کی غائب بھی اسی طرح برقرار رہے گی۔ ضرب ان سب مردوں نے مارا، اس کی بھی پوزیشن ہمیں معلوم ہو گئی۔ اس سانچے میں کوئی لفظ آئے گا تو وہ جمع ہوگا، اس طرح مذکر ہوگا اور اس طرح غائب ہوگا۔ یہ اس کی تینوں پوزیشنیں ہمارے سامنے اس لفظ کی بھی واضح ہو گئی۔ اب ضربت، یہ ذرا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ ضربت، یہ آئے گا ضربتا، یہ آئے گا ضربتے، ان تینوں کا الگ الگ معنی ہے۔ ضربت ہو تو اس ایک عورت نے مارا، ایک عورت نے مارا گزشتہ زمانے میں۔ یہ گزشتہ زمانے کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کی پوزیشن یہ واضح ہو جائے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، اور یہ پاسٹ کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ واحد صیغہ ہے، واحدہ ہے، اور یہ مؤنثہ ہے، اور یہ بھی غائب کا صیغہ ہی آتا ہے، اس طرح واحد مؤنث غائب۔ اچھا، یہی تینوں پوزیشنیں ہیں ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا، تثنیہ مذکر غائب میں، ان کے پھر یہاں پر تھوڑے سے کاپی پیسٹ کر کے تاکہ آسانی رہے، ذرا وقت تھوڑا ہے، اس وقت کو ہم جلدی اس کو ختم کر لیتے، اس کے اندر چینجنگ کر لیتے ہیں ہم۔ ان دو عورتوں نے مارا، یہاں لفظ مردوں کے بجائے ہم عورتیں کر لیں گے۔ عورتوں نے مارا گزشتہ زمانے میں، یہ تثنیہ ہے، یہ مذکر کے بجائے یہاں پر مؤنث لکھ دیں گے، یہ فیمیلز کے لیے لفظ عربی زبان کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ضربنا، یہ بالکل جمع مذکر غائب کی طرح ہے، ان سب عورتوں نے مارا گزشتہ زمانے میں، اور یہ جمع مذکر جو ہے، جمع مؤنث ہے غائبین کے لیے۔
कि मुज़क्कर को हम बदल देंगे मुअन्नस के अंदर और मर्द को बदल देंगे औरतों में। ये आज आपने 6 सीगे पढ़े हैं, कल इंशाल्लाह 8 आप अगले पढ़ेंगे, जिसमें से 6 इसी तरह मुखातब के सीगे होंगे, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तस्नीया मुज़क्कर मुखातब, जमा मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुअन्नस मुखातब, तस्नीया मुअन्नस मुखातब, जमा मुअन्नस मुखातब, और 2 मुतकल्लिम के होंगे, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। मुतकल्लिम के सीगों में मुज़क्कर मुअन्नस की कोई तफरीक नहीं होती, मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए एक जैसे अल्फाज आते हैं, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं किया जाता, ना कोई फ़र्क उसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस का होता है। तो ये आज का आपका सबक था ग्रामर के एतबार से। ये पहले 6 सीखे हैं। अच्छा, इनको आप याद करने का तरीका ये होता है, आपने कुछ दिन रट्टा लगाना होगा, ऐसे ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा। अब पहले 6 को रट्टा लगाएंगे, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना। उसका आपको फ़ायदा ये होगा, फिर दुनिया का कोई लफ्ज़ भी आपके पास आएगा, आपके पास दुनिया का फिर कोई लफ्ज़ आएगा, उस आप लफ्ज़ को आसानी के साथ जो है समझ सकेंगे। कि जब आप 6 सीखे याद करेंगे, या आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत आपको पूरे कुरान में मौजूद मालूम होगा कि कितना आपको फ़ायदा देती है। दुनिया का कोई लफ्ज़ आपके पास आता है तो आप उसको 14 हालतों के अंदर आसानी से मालूम कर सकते हैं, और यही इसी तरह की 14 हालतें फिर माजी मजहूल के अंदर होंगी। बिल्कुल आसान होगा, जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये कोई बात ही नहीं है। इस तरह की 14 हालतें उसके अंदर होंगी, मुज़ारे के अंदर होंगी, वो भी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह ये हम इस तरह चलेंगे। ये आपके कल होमवर्क सिर्फ याद करने का ताल्लुक रखता है आपके साथ, कि आपको ये पहले 6 सीखे याद अच्छे तरीके से होने चाहिए। ये जब कुरान मजीद में आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर हम इनकी रिसर्च मजीद किस तरीके से करेंगे। ये रहा आज का हमारा सबक, जो हमने पढ़ा है। इस एतबार से हमने इसका मानी मुतालिब भी देख लिए हैं, इसकी ग्रामर के एतबार से भी तहकीक देख ली है। अब हम किरात की तरफ बढ़ते हैं, अपने इस शोबा को किरात की तरफ बढ़ाते हैं। किरात आज हम सूरत फातिहा की कल हमने पढ़ी थी, हमें कुछ स्टूडेंट ने भेजी थी, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी उनकी काविश थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने नहीं भेजी थी। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो किरात की मशक करें। कुरान मजीद मशक करने के साथ, पढ़ने के साथ आता है, वो कुरान मजीद को पढ़कर हमारे साथ ज़रूर इसको भेजें। आइए आज फिर हम एक दफ़ा इसको अगेन पढ़ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट आज नया है, तो कल से इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। ये इस तरीके से जी आपने इसको याद करना है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी को कोई सवाल है तो 3 मिनट हमारे पास है, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। जी पूछिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, मैसेज आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये चाह रही थी कि आप इसको रिपीट कर दिया करें, कम से कम 2 बार। आप मुझे मैसेज कर दें, आवाज मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी हम सबक पढ़े उसको आप जब किरात करते हैं तो हम उसको रिपीट कर लिया करें, आप मतलब उसको रिपीट कर दिया करें। आज चले, ये भी अच्छा जी सर मशवरा ठीक है। ये भी अच्छा मशवरा है। उसके लिए जब थोड़ा सा क्लास का टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा फिलहाल। तो ये फिलहाल क्योंकि मौसम बड़ा सख्त है, बिजली का बड़ा इशू रहता है,
تو الیکٹریفिकेशन جب صحیح ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ کلاس کو تھوڑا ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے, ٹائم اس کا زیادہ کر لیں گے, پھر یہ سارا انشاءاللہ اس کو ریپیٹ جہاں سے بھی کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, میں بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کا یہ جو آج کا سبق ہے اس کی میں آپ کو بھی PDF فائل بھیج دیتا ہوں, اور صبح یہ ویڈیو آپ تک انشاءاللہ کل کی طرف پہنچ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہیلو جی آواز آ رہی ہے. سر یہ کب تک گرامر کریں گے, کیونکہ گرامر ہمارے لیے نہیں ہے, بہت ٹف ہے, مطلب سمجھ نہیں آتا اتنا, بہت مشکل لگ رہی ہے. آپ کو جتنا سمجھ آتا ہے اتنا آپ کرتے جائیں, کوئی مشکل گرامر نہیں ہے. 1 منتھ کے بعد آپ لوگ خود فیل کریں گے کہ قرآن مجید کتنا ایزی ہے اور یہ گرامر کتنی ایزی ہے. ظاہر بات ہے کوئی بھی نئی چیز جب پڑھی جاتی ہے تو ابتدا میں مشکل محسوس ہوتی ہے, اور اس کو ہم مزید کوشش کریں گے اس کو ہم آسان کرنے کی اور کم کرنے کی. گرامر اگر ہم اس کی ریپیٹیشن کرتے جائیں گے, جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو انڈر لائن کرتے جائیں گے تو ایزی ہو جائے گی, پریکٹس آئے گی انشاءاللہ.